غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ طارق بن زیاد، فاتح اندلس، عالم اسلام کا ایک درخشاں ستارہ۔ اس جوان سال سپاہی سالار کی بدولت مسلمانوں نے اندلس اور اسپین پر 800 سال حکومت کی۔ داستان کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اندلس کی تاریخ لکھنے والے مورخوں نے کچھ روایتیں لکھی ہیں جو بظاہر حیران کن بلکہ ناقابل یقین لگتی ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعات یورپ کے عیسائی مورخوں نے اس دور کی تحریروں کے حوالے سے لکھے ہیں تو ان پر یقین کرنا پڑتا ہے۔ عیسائی تاریخ نویسوں کو تو مسلمانوں کے خلاف لکھنا چاہیے تھا، کیونکہ اندلس کی فتح عیسائیوں کی ہی نہیں بلکہ عیسائیت کی شکست تھی۔ 3 مستند عیسائی مورخوں نے طارق بن زیاد اور راڈرک کے متعلق ایک واقعہ لکھا ہے۔ اندلس کی فوج کے جرنیل تھیوڈومیر کو شکست دینے کے کچھ دن بعد طارق بن زیاد گھوڑے پر سوار اس طرف جا رہا تھا جس طرف اس نے پیش قدمی کرنی تھی۔ کمک کے آنے تک اس نے اسی میدان جنگ کے قریب ڈیرا ڈال دیا تھا۔ وہاں سے لاشیں تو اٹھا لی گئی تھیں، لیکن خون اتنا زیادہ تھا اور جم کر خشک ہو گیا تھا کہ دن رات طرح طرح کے جانور اور حشرات الارض وہاں پھرتے اور خون چاٹتے رہتے تھے۔ سانپوں کی بہتات ہو گئی تھی۔ طارق بن زیاد آگے کا علاقہ دیکھنے جا رہا تھا۔ جولین گائیڈ کے طور پر اس کے ساتھ تھا اور اس کے ساتھ مغیث الرومی اور ابو زویا طریف بھی تھے۔ اوپاس کب تک واپس آئے گا؟ طارق بن زیاد نے پوچھا۔ پکڑا ہی تو نہیں جائے گا، وہ ایسا اناڑی تو نہیں؟ جولین نے جواب دیا۔ کچھ کر کے ہی آئے گا، وہ ایسے بحروپ میں گیا ہے کہ اسے کوئی پہچان نہیں سکے گا۔ اس کی گرفتاری کا امکان کم ہی دکھائی دیتا ہے۔ جنگی قیدیوں سے آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ شاہ راڈرک تولیتا میں نہیں، تمام امراء و وزراء اس کے ساتھ گئے ہوں گے۔ اس صورت میں اوپاس کا کام آسان ہو جائے گا۔ وہ باتیں کرتے کرتے ملاحوں اور ماہی گیروں کی بستی سے آگے نکل گئے۔ طارق کو بتایا گیا تھا کہ دور دور تک کوئی قصبہ کوئی شہر نہیں، اس لیے یہاں فوج بھی نہیں۔ وہ اور آگے چلے گئے۔ علاقہ خوبصورت اور سرسبز تھا۔ قدرت کے اس حسین خطے میں چھوٹی سی ایک بستی تھی جس کے اندر اور باہر لوگ گھوم پھر رہے تھے۔ طارق اور اس کے ساتھی بستی کے قریب پہنچے تو سب لوگ اپنے گھروں کو بھاگ گئے۔ جولین، طارق بن زیاد نے کہا، انہیں شاید معلوم ہو گیا ہے کہ ان کی فوج کو ہم نے شکست دی ہے۔ انہیں کون سمجھائے کہ ہم ان فاتح بادشاہوں میں سے نہیں جو کوئی شہر فتح کرتے ہیں تو ان کے فوجی گھروں میں گھس کر لوٹ مار، قتل و غارت اور لڑکیوں کو بے آبرو کرتے ہیں۔ ابن زیاد، سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہاری طرف سے کوئی ایسی حرکت نہیں ہوگی تو یہ خود ہی سمجھ جائیں گے۔ وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ ایک ضعیف العمر عورت بستی سے نکلی اور طارق بن زیاد کے راستے میں کھڑی ہو گئی۔ طارق نے اپنا گھوڑا روک لیا، اس کے ساتھیوں کے گھوڑے بھی رک گئے۔ کیا تم میں اس فوج کا کمانڈر بھی ہے جس نے ہماری فوج کو شکست دی ہے؟ بڑھیا نے پوچھا۔ ہاں بڑی اماں، جولین نے طارق کی طرف اشارہ کر کے بڑھیا کی زبان میں کہا، یہ ہے اندلس کی فوج کو شکست دینے والا فاتح۔ گھوڑے سے اترو، بڑھیا نے طارق سے مروب ہوئے بغیر اس سے کہا، اور اپنا سر ننگا کرو۔ مغیث الرومی اندلس کی زبان سمجھتا تھا۔ اس نے طارق بن زیاد کو بتایا کہ بڑھیا کیا کہہ رہی ہے۔ طارق گھوڑے سے اترا اور اپنا سر ننگا کر دیا۔ او، بڑھیا نے طارق کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، تم آگے ہو۔ میرا خاوند کاہن تھا جس کی پیش گوئیوں کی شہرت دور دور تک تھی، وہ مر گیا ہے۔ اس نے مجھے کئی بار کہا کہ باہر سے ایک قوم آئے گی اور اندلس کو فتح کر کے اس ملک میں حکمرانی کرے گی۔ اس کے کمانڈر کی نشانیاں یہ ہوں گی کہ اس کے سر اور داڑھی کے بال سرخی مائل ہوں گے اور اس کی پیشانی چوڑی ہوگی۔ وہ تم ہی ہو، تمہارے بال سرخی مائل ہیں اور تمہاری پیشانی چوڑی ہے۔ ایک نشانی اور رہ گئی ہے، اپنا بایاں کندھا ننگا کرو، اس پر ایک موٹا تل اور تل کے ارد گرد بال ہوں گے۔ مغیث الرومی نے طارق بن زیاد کو بتایا کہ بڑھیا نے کیا کہا ہے، پھر اس سے کہا کہ وہ اپنا کندھا ننگا کرے۔ بڑھیا ٹھیک کہتی ہے۔ طارق نے اپنا بایاں کندھا ننگا کرتے ہوئے کہا، میرے اس کندھے پر تل ہے، اندلس کو تم ہی فتح کرو گے۔ بڑھیا نے طارق کا تل اور تل کے ارد گرد بال دیکھ کر کہا، وہ تم ہی ہو جو اس ملک کے لوگوں کو بادشاہ اور اس کے کارندوں کے ظلم و ستم سے نجات دلاؤ گے۔ یہ روایت 3 مستند مورخوں سٹینلے لین پول، سٹینز اور بازرت سمتھ نے لکھی ہے۔ میرے رفیقو، طارق بن زیاد نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں تم سب کو اپنے پورے لشکر کو اپنا خواب سنا چکا ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بشارت دی تھی
कि हमें फतह हासिल होगी। अब ये बुढ़िया मुस्दा सुना रही है कि उंदलस का फातिह मैं ही हूँगा, लेकिन याद रखो कि हमें जानों की बाजी लगाकर लड़ना होगा। उसी रात उपास आ गया। वो बड़ी लंबी मुसाफिर तय करके आया था। वो पहले जोलियन के पास गया। जोलियन उसे तारक बिन ज़ियाद के हेमे में ले गया, जहाँ दूसरे सलार भी बैठे हुए थे। उपास ने अपनी सारी कारगुजारी सुनाई, मरीना से मुलाकात और उसके साथ उसने जो बातें की थी वो सुनाई। क्या तुम्हें यकीन है कि ये औरत इतना बड़ा और इतना नाजुक काम कर देगी? तारक ने पूछा। मुझे उस पर एतमाद है, उपास ने कहा। अगर मरीना ये काम नहीं करेगी या नहीं कर सकेगी तो दूसरे कर देंगे। गोत कौम के कुछ सरदार वहाँ मौजूद हैं, मैं उन्हें मिल आया हूँ। लेकिन इब्ने ज़ियाद, ये सुन लो कि राडर कमोबेश 1 लाख फौज अपने साथ लाएगा। पंपलूना से तुलिता तक के लोग फौज में शामिल हो रहे हैं। ये तो मेरे लिए बड़ी अच्छी खबर है, तारक बिन ज़ियाद ने कहा। अगर लोग फौज में शामिल हो रहे हैं तो वो हजूम की सूरत में लड़ेंगे। वो तरबियत याफ्ता और तजुर्बाकार फौज की तरह नहीं लड़ सकेंगे। वो जंगी तंजीम से बेबहरा होंगे। फिर भी हमें किसी हुशफहमी में मुब्तला नहीं रहना चाहिए। सलार अबू ज़ोया तरीफ ने कहा, हमारे पास इतनी फौज कभी नहीं होगी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुमक मिली तो 7,000 से ज़्यादा नहीं होगी। मैं तुम सबको ये बताना चाहता हूँ, तारक ने कहा, कि अल्लाह हमारी फतह के असबाब पैदा कर रहा है। उबास तुलिता में कुछ कर आया है, ये अल्लाह का हाथ कर रहा है। अमीर मिस्र अफ्रीका मूसा बिन नुसैर ने खलीफा वलीद को तारक बिन ज़ियाद की पहली फतह का जो पैगाम भेजा और कुमक मांगी थी, उसके जवाब में खलीफा ने दमिश्क से कुमक रवाना कर दी थी, जिसकी नफरी 5,000 थी। किसी भी तारीख में यह तफसील नहीं मिलती कि इन 5,000 में सवार कितने और प्यादे कितने थे। अलबत्ता ये हकीकत सब के सामने थी कि ये कुमक खतरनाक हद तक कम थी। तारक के पास 7,000 फौज थी, जिसमें उंदलस की पहली लड़ाई में कुछ कमी आ गई थी जो मामूली थी। कुमक मिलाकर नफरी 12,000 हो जाती थी। उधर राडरक के ऐलान के जवाब में लोग जोक तर जोक फौज में शामिल हो रहे थे। चंद दिनों में ही राडरक की फौज की तादाद 50,000 हो गई थी और ये तादाद तेजी से बढ़ रही थी। राडरक को मशीरों ने कहा था कि हमला आवरों की तादाद सिर्फ 7,000 है और इतनी थोड़ी तादाद के लिए इतनी ज्यादा फौज इकट्ठी न की जाए। एक तो वक्त जाया हो रहा है, दूसरे अखराजात बढ़ रहे हैं। थियोडोमीर ने हमला आवरों को जीन और भूत कहा है। शाह उंदलस राडरक ने बादशाह की तरह गरज कर कहा, मैं 1 लाख से ज्यादा फौज लेकर जाऊंगा ताकि दुनिया की दूसरी कौमों को भी पता चल जाए कि शाह उंदलस कितना ताकतवर है। फिर उनके दिमागों से उंदलस पर फौज का शिकाबूत निकल जाएगा। मैं ज्यादा से ज्यादा फौज से इन 7,000 हमला आवरों को कुचल डालूंगा। इन पर 20-25 हजार घोड़े दौड़ाकर इनके जिस्मों का कीमा कर दूंगा। मैं जिन्नों और भूतों से डरने वाला नहीं। तारीख ने इस हकीकत को तस्लीम किया है कि राडरक बेखौफ और निडर जंगजू था और जिन्नों भूतों से डरने वाला आदमी नहीं था। उसकी बेखौफी और गैर मामूली दुलेरी ने एक ऐसी कहानी को जन्म दिया था जो तारीख का हिस्सा बनी। एक अमरीकी तारीख नवीस वाशिंगटन ओरोंग ने अपनी किताब स्पेन की फतह में ये वाक़या तफसील से लिखा है। मरूफ मोरख लैन पोल ने यह वाक़या वाशिंगटन ओरोंग के अलावा कदीम दौर की दस्तावेजात के हवाले से अपनी किताब मोर स्पेन में शामिल किया है। यूरोपी तारीख नवीस और दीगर अहले कलम बर्बर मुसलमानों को मुँह लिखते हैं। ये वाक़या यूं बयान किया गया है कि तारक बिन ज़ियाद के उंदलस पर हमले से कुछ अरसा पहले शाह राडरक तुलिता में अपने दरबार में तख्त पर बैठा था। 2 मुअज़्ज़ज़ बूढ़े दरबार में दाखिल हुए। वो कदीम तरज की सफ़ेद कबाओं में मलबूस थे। वो मजहबी पेशवा मालूम होते थे। उनकी सफ़ेद लंबी दाढ़ियाँ और उनकी चाल डाल बताती थी कि वो ऊंचे दर्जे के काहिन या राहब हैं। उन्होंने कमर से कपड़े के कमरबंद बांध रखे थे और उन दोनों के कमरबंदों से चाबियों का एक एक गुच्छा लटक रहा था। राडरक जैसा मगरूर और सितमगार बादशाह उनके एहतराम में उठ खड़ा हुआ। इन मुकद्दस बूढ़ों में से एक ने राडरक को हाथ से इशारा किया कि वो बैठ जाए। राडरक बैठ गया। ऐ शहनशाह उंदलस, एक बूढ़े ने कहा, हम तुम्हें राज की एक बात बताने आए हैं। हर नए बादशाह का इस राज से आगाह होना जरूरी होता है। तुम नए तहत नशीन हुए हो, तुम्हारे कदम जम गए हैं। मैं ये राज सुनने को बेताब हूँ। राडरक ने कहा, मजीद तमहीद की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ज्यादा बेसब्र न हो बादशाह। बूढ़े ने कहा, ये राज सुनकर भी सब्र का दामन ना छोड़ना, वरना बहुत पछताओगे। जब इस मुल्क में हरकल की बादशाही थी तो उसने आबनाए उंदलस में सतून तमीर करवाए थे और फिर उसने इस शहर तुलिता के बाहर एक बहुत चौड़ा बुर्ज भी तमीर करवाया था। इसमें उसने कोई जादू या शहर छोड़ दिया था। उस बुर्ज का एक ही दरवाजा है जो लोहे का है और ये दरवाजा बहुत मजबूत है। इसे उसने अपने हाथों से ताला लगाया था। उसने कहा था कि उंदलस के हर नए बादशाह पर लाजम है
कि वो तहत नशीनी के कुछ अरसा बाद इस आहनी दरवाजे पर एक ताला लगाकर चाबी हमें दे दे। बूढ़े ने रॉड्रिक को चाबियों के गुच्छे दिखाते हुए कहा, ये उन तालों की चाबियां हैं जो हरकल के बाद और तुमसे पहले के बादशाहों ने बुर्ज के आहनी दरवाजे को लगाए थे। अब तुम्हारी बारी है, दरवाजे पर अपना ताला लगा दो, हम किसी दिन आकर चाबी ले जाएंगे। मैंने ये बुर्ज देखा है, रॉड्रिक ने कहा, मैं इसे कोई कदीम इमारत समझता रहा हूँ। क्या तुम दोनों इस बुर्ज में रहते हो? नहीं ऐ शाह उंदलस, बूढ़े ने कहा, हम दूर से आए हैं। ये चाबियां हमें हमारे बाप दादा दे गए हैं। इस बुर्ज की हिफाजत हमारे खानदान की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी हमारी आने वाली नस्लें पूरी करती रहेंगी। क्यों ना मैं ये तुम्हारी जिम्मेदारी यहीं पर खत्म कर दूं? रॉड्रिक ने कहा, ए बादशाह। दूसरे बूढ़े ने कहा, हम दोनों को अपनी राया ना समझ। अगर तेरा इरादा बुर्ज का दरवाजा खोलने का है तो सुन ले कि तू पछताएगा, बहुत बुरे अंजाम को पहुंचेगा। ऐसे बादशाह हो गुजरे हैं जिन्होंने ये दरवाजा खोला था। किसी बूढ़े दास्तान गो को बुलाकर पूछ कि इनका अंजाम कितना भयानक हुआ था। जूलियन सीजर से बढ़कर जाबर और जबरदस्त बादशाह कौन था? उसने भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश नहीं की थी। हम जा रहे हैं, खबरदार रहना बादशाह, हम हकीकत हाल बयान कर चुके हैं। कुछ दिनों बाद हम उस ताले की चाबी लेने आएंगे जो तू इस दरवाजे को लगाएगा। दोनों बूढ़े चले गए। अगर रॉड्रिक इस मुल्क का शहंशाह है तो इस मुल्क का कोई राज इससे पोशीदा नहीं रहेगा। दोनों बूढ़ों के जाने के बाद रॉड्रिक ने ऐलान किया, मैं इस बुर्ज को ताला नहीं लगाऊंगा। मैं तमाम ताले तोड़कर और दरवाजा खोलकर देखूंगा कि अंदर क्या है। गुस्ताही माफ शहंशाह, एक मशीर बोला। हम में से किसी को भी शक नहीं कि शहंशाह की दुलेरी और बेखौफी ज़रबुल मिसल बन चुकी है, लेकिन शहंशाह को खतरों से बचाना हमारा फर्ज है। बूढ़े राहब बता गए हैं कि हरकल ने बुर्ज के अंदर कोई सहर या कोई जादू छोड़ा था। कोई इंसान जादू का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं शहंशाह से दरख्वास्त करता हूँ कि बुर्ज के आहनी दरवाजे पर ताला लगा दें, फिर उसे भूल जाएं। फिर मुझे शहंशाह कहना छोड़ दो। रॉड्रिक ने कहा, यह जमीन मेरी है, इसका हर राज मेरा है। मैंने पहले कभी उस बुर्ज की तरफ ध्यान नहीं दिया था। अब मैं यूं महसूस करने लगा हूं जैसे ये पुर इसरार बुर्ज मेरे सीने पर खड़ा है। शहंशाह रॉड्रिक, बुश्प ने उठकर कहा। उंदलस, फ्रांस और जर्मनी के पहाड़ भी रॉड्रिक का नाम सुनते हैं तो कांप जाते हैं, लेकिन कुछ पुर इसरार कुव्वतें ऐसी होती हैं जिनके आगे इंसान बेबस होता है। अगर शहंशाह मुझे अपना मजहबी पेशवा मानते हैं तो मुझे इस हक से महरूम न करें कि मैं शहंशाह को बुर्ज के अंदर जाने से रोकूं। हरकल मुझ जैसा बादशाह था, रॉड्रिक ने कहा। अगर उसने कोई पुर इसरार ताकत बुर्ज में बंद की थी तो ये उसके कब्जे में थी। मैं इसे अपने कब्जे में ले सकता हूँ। उसने दरबारियों पर मुस्कुराते हुए निगाहें दुड़ाई और तंसिया लहजे में बोला, बुज़दिलो, उस बुर्ज में रूमियों ने खजाना बंद किया था। वहाँ बेशकीमत हीरे और जवाहरात होंगे। वहाँ खतरा सिर्फ ये होगा कि बड़े जहरीले सांप होंगे या कोई बुरा सांपों का जोड़ा होगा। तुम में कितने इतने बहादुर हैं जो उस बुर्ज का राज फाश करने में मेरा साथ देंगे? उसने अपने जर्नैलों की तरफ देखा जो दरबार में मौजूद थे। वो शहंशाह की नजरों में बुज़दिल नहीं बनना चाहते थे। वो उठ खड़े हुए। सब ने बारी बारी कहा, मैं शहंशाह का साथ दूंगा।